हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video I am going to discuss a very important question from the Canterbury Tales. It's a long question. It can come for 20 marks, and if you are satisfied with the answer after watching the video, please do not forget to like the video. It really motivates me. Let's start. Discuss Chaucer's handling of the fable in the Nun's Priest Tale. Now, what is the meaning of fable? Fable means a short story that teaches moral lessons and specially using the animal as a main character. तो यहाँ पे जो animal है वो क्या है? Rooster है. So the question asks what makes Chaucer's version of this animal story special. ठीक है, Chaucer ने इस fable story को कैसे हैंडल किया है, किस तरीके से प्रेजेंट किया है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगे. So this story is not just like old fables. It is not just a simple story. In fact, it turns into mock heroic, funny and thoughtful poem. Chaucer takes a small animal fable and makes it grand. He uses mock heroic style, which means using big, serious language to describe small funny things. मतलब कि इसमें जो रोस्टर है उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया जैसे कि कोई बहुत बड़ा किंग हो और जब उसे फॉक्स उठा के ले जाता है तो जब हैन रोती है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े शहर का फॉल हुआ है, मतलब बहुत बड़ा जो शहर है उसको वो लुट गया हो, इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है. तो इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा फनी लगता है क्योंकि लैंग्वेज जो है एक रूस्टर के लिए बहुत सीरियस है. ओके, सो द रूस्टर चॉन्टेक्लियर इज डिस्क्राइब्ड एज अ king, great king, and his crowning is compared to music and his look to gold. When the fox catches him, the hen's cries are described like a fall of great cities, like Troy और Rome. ऐसे बड़े बड़े cities का fall हो रहा है, इस तरीके से describe किया गया. So this makes us laugh because the language is too big for the small event. But it also shows human pride and foolishness. Then Chaucer adds deep ideas to the story. वो कैसे होता है जब वो ड्रीम के बारे में बताता है. ओके, द ड्रीम डिबेट बिटवीन चॉन्टेक्लियर एंड हिज वाइफ पर्टिलोट इज अ बिग पार्ट ऑफ द टेल. शी सेज ड्रीम्स मीन्स नथिंग and he says dreams can predict the future. So their argument include reference to books, medicines, even the बाइबल. ठीक है, जब ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो ये लोग स्पेशली रूस्टर जो है वो कई सारे बुक्स का, मेडिसिन का, बाइबल का, इवन हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहा था, रेफरेंस दे रहा था. सो दिस ट्रांसफॉर्म अ सिंपल रूस्टर्स ड्रीम इनटू अ डिस्कशन अबाउट फेथ एंड फ्री विल. देन चॉसर ऑल्सो फिल्स द टेल विथ आयरनी एंड humor. Irony means unexpected part of any situation. So Chanticleer talks like a scholar but gets tricked by flattery. तो चौसर ने यहाँ पे आयरनी का यूज़ किया है और ह्यूमर का. तो आयरनी इस तरीके से हुआ कि जो शांटिक्लियर है, जो मतलब रूस्टर है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्कॉलर समझ रहा है, वो स्मार्ट है, लेकिन फिर भी जब फॉक्स उसकी तारीफ़ करता है तो वो भावनाओं में बह जाता है. वो ये नहीं समझ पाता है कि उसे वो फंसाने की कोशिश कर रहा है. तो जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो स्कॉलर लोग होते हैं, उनके केस में ये बहुत ही रेयर होता है. तो इसी को यहाँ पे आयरनी कह सकते हैं क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था कि जो इतना स्मार्ट है, जो स्कॉलर है, वो फंस सकता है. सो द नन्स प्रीस्ट टेल दिस स्टोरी विथ अ मॉरल एट द एंड, बट वी एंजॉय इट सो मच दैट इट फील्स मोर लाइक अ फन स्टोरी देन a sermon. So friends, this mixture of wisdom and laughter is Chaucer's special gift. Finally, Chaucer blends many genres. The tale is a fable, a philosophical debate, a romance and a sermon all at once. So this makes it rich, funny and meaningful at the same time. Now let's conclude this answer. Chaucer's handling of the fable in The Nun's Priest Tale shows his true genius. He takes a simple barnyard story to turns into something great, a story full of humor, wisdom and life. It teaches lesson about pride and flattery, but at the same time it also entertains us and makes us think, and that is what makes Chaucer a timeless poet. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. कैंटरबरी टेल्स और चौसर से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जो मैंने पहले ही अपलोड किया, आप उसे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर. आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं, आपको जो भी डाउट होगा आप कॉमेंट में लिखेंगे. आपके कॉमेंट को प्रायोरिटी मानकर उसे रिप्लाई पहले दिया जाएगा. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.